A very good morning, everyone. I welcome you all for the next part of our chapter. The name of the chapter is Food. Where does it come from? So, in the last session, already we discussed about the plant part as a food, like vegetables, included such as roots, stems, leaves, flowers, and the fruits. So, now in this session, we discuss about the edible foods. If what are the role of edible foods in our life, and what are the examples of edible foods. And next one concept is starters. There are different kinds of the starters foods are also cooking oils, nuts, beverages, and food from animal. तो आज के सेशन में हमें क्या है, एडिबल फूड्स के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन कर लेना है. So let's start today's session. This is the beautiful world of science and technology. So edible foods are nutritious and the appetizing. So edible foods are the nutritious and the appetizing. Foods come under the protective food. So edible foods are come under the protective food. तो एक edible जो फूड से एक क्या होता है, उनमें अच्छा न्यूट्रिएंट्स रहता है, वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होते हैं, और एक क्या होता है का प्रोटेक्टिव फूड उनको क्या है कहा जाता है. The alone cannot provide a balanced diet because the majority of them supply little protein. So edible foods alone cannot provide the balanced diet. वो एक अच्छा डाइट क्या बोलते प्रोवाइड, वो अकेले ही एक अच्छा डाइट क्या बोलते प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दे प्रोवाइड द मेजॉरिटी ऑफ सप्लाई न्यूट्रिएंट्स. उनके पास जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई की थोड़ी सी क्या बोलते कमतरता रहती है, इसलिए वो ज़्यादा क्या बोलते न्यूट्रिएंट्स सप्लाई नहीं कर पाते. दे इंक्लूड मैंगोज, एप्पल्स, ग्रेप्स, bananas, guavas, lychees, pineapples, and the papayas. There are different kinds of the edible foods, like the example of mangoes, papaya, banana, grapes, strawberries, oranges are the examples of edible foods. Now see, so edible foods are the nutritious and the appetizing, and these foods come under the protective food. They alone cannot provide a balanced diet because the majority of सप्लाई देम लिटिल. जो एक न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की उनकी जो पावर की जो क्षमता है वो थोड़ी सी क्या तो कम है. इसके हम अलग अलग एग्जांपल दे सकते हैं. अपना मैंगो है, बनाना है, और अपना क्या ऑरेंज है, ग्रेप्स है. तो ये जो एडिबल फूड्स है, इनके माध्यम से क्या तो कुछ मात्रा में हमें क्या तो न्यूट्रिएंट्स क्या है मिल जाता है. सो राइट डाउन, एडिबल फूड्स आर edible foods are nutritious and appetizing. Foods come under protective food. Now see, so foods come under protective food. They alone cannot provide a balanced diet because the majority of them supply little protein. Now see, they include mangoes,
apples, oranges, grapes, bananas, guavas, pineapples, and papayas. And papayas. So these are the examples of edible foods. Understand? So edible foods are nutrients and the appetizing. ये क्या होते हैं? Nutritious foods रहते हैं. Foods come under the protective food. They alone cannot provide a balanced diet because the majority of them supply little protein. उनकी जो सप्लाई करने की जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी क्या बोलते कम है. उसमें कुछ आते बोलते अपना मैंगो से, एप्पल से, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, guavas है, pineapples and the papayas. Understand? Now see the next one, seeds. The seeds of some grasses called as cereals. Now see. जो हमारे कुछ ग्रासेस की जो सीड्स रहती है उसको हम क्या कहते हैं? सीड्स कहते हैं. जिस तरह से अपना गेहूं है, चावल है, मक्का जिसको हम बोलते हैं, बैरली है. तो एक अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? सीरियल्स है. The seeds of some grasses are called as the cereals, such as wheat, rice, maize, and oat are used in making many food products such as bread, breakfast cereals, and the flours. हमें सभी को मालूम है. So with the help of cereals, we are making the different kinds of the products like bread, केक है, अपना ब्रेकफास्ट है. तो अलग अलग प्रकार की जो खाने की चीजें क्या होती है इनके माध्यम से क्या है बनाई जाती है. So understand? The seeds of some grasses are called as the cereals like wheat, rice, maize, barley. तो एक अलग अलग प्रकार के जो क्या होते हैं क्या है सीरियल्स है. इनके माध्यम से क्या होता है अलग अलग प्रकार के क्या है खाने की चीजें क्या है बनाई जाती है. जिस तरह से हम गेहूं से अपना गेहूं का जो फ्लोर रहता है, पीट रहता है, उसके माध्यम से हम ब्रेड बनाते हैं, चपाती बनाते हैं. राइस के माध्यम से अलग अलग चीजें बनाई जाती है, अपना जो इडली है. तो ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं इसमें क्या है यूज किए जाते हैं. नाउ सी नेक्स्ट वन, सीड्स. Next one is seeds. The seeds of some grasses called cereals, such as wheat, rice, maize are used in making many food products such as bread, breakfast, cereals and flour. Listen, the seeds of some grasses are called as the cereals, such as wheat, rice, maize are used in the making the different kinds of the food products. For example, is the bread and the breakfast cereals and the flours. Now see,
More than half of the population around the world eat rice at the importance of their food. Now see, most of the half of the population of the world, दुनिया की जितनी आबादी है उनमें से आधे लोग तो क्या हो तो मोस्टली क्या खाते हो तो राइस को क्या है वो खाते हैं. Wheat is the most important food crops of the world. दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप कौन सा है बोले तो गेहूं, जिसको हम व्हीट बोलते हैं. जो गेहूं है वो दुनिया का सबसे क्या बोले तो इम्पोर्टेंट क्या बोले तो फूड है. Important wheat producing areas of the world are bread baskets. Now see, the important wheat producing areas of the world are called as the bread basket. जिस एरिया में सबसे ज्यादा क्या बोले तो गेहूं को क्या है उत्पादन किया जाता है, रेडी किया जाता है, उसको कहा जाता है ब्रेड बास्केट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेड बास्केट? दुनिया में जो सबसे ज्यादा क्या बोले तो ब्रेड को क्या है उत्पादन किया, जिस एरिया में उत्पादन किया जाता है उसको हमें क्या कहना बोले तो ब्रेड बास्केट कहना. Cereals from the basis of a people's diet. So cereals form the basis of a people's diet across the world. Now see, जो हमारा मैक्सिमम लोगों का जो बेसिस है वो क्या बोलते हैं क्या है सीरियल्स. अंडरस्टैंड? तो दुनिया की जो आधी आबादी है, दुनिया की जो आधी आबादी है वो किसके ऊपर डिपेंड है? उसमें से सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं तो राइस, चावल जिसको बोलते हैं हम भात. और व्हीट जो अपना गेहूं है ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोलते तो क्रॉप है. और जिस एरिया में सबसे ज्यादा गेहूं को क्या है रेडी किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हमें कहना है ब्रेड बास्केट. सीरियल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ पीपल्स डाइट अक्रॉस द वर्ल्ड. सीरियल्स का भी इस दुनिया में क्या बोलते तो बहुत बड़ा क्या है रोल है. Now see, the seeds of some plants are used as the pulses or dals. Now see, कुछ प्लांट्स की जो सीड्स रहते हैं उनको क्या बोलते तो दाल और पल्सेस बोलकर उनको क्या है यूज किया जाता है. यूज इंक्लूड्स आहार पिजन पी, मूंग की दाल, उड़द की दाल, अपनी तुअर की दाल हो या चने की दाल हो, उसको क्या बोलते तो एक दाल की तरह क्या है यूज किया जाता है. सीड्स ऑफ सम पल्सेस सच एज मूंग और चना आर स्प्रॉड एंड ईटन. स्प्रॉड मींस उसके जो यंग स्टेम रहते हैं, हम जो हरभरे की भाजी बोलते हैं, मूंग की जो भाजी बोलते हैं, उसको क्या है वो मैक्सिमम तरह से क्या है खाया जाता है. नाउ सी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेड बास्केट? ब्रेड बास्केट का मीनिंग क्या है इसके बारे में लिख लेना है. डिफाइन ब्रेड बास्केट या व्हाट इज मीन बाय ब्रेड बास्केट. ब्रेड बास्केट define bread basket. Define bread baskets. Now see, important wheat producing, important wheat producing areas of the world are called bread baskets. Are called bread baskets. Now see, the important wheat producing areas of the world are called as the bread baskets. Listen, what is the meaning of a bread baskets? Now see, the next one is the sprouts are. अब sprouts का मीनिंग क्या है इसके बारे में हमें जान लेना है. Young should especially of मूंग, beans और soyabeans eaten as a vegetable or fruit. तो एक यंग जो उनका जो शूट सिस्टम रहता है उसमें स्टीम आती है, लीव्स आते हैं, उसके ब्रांचेस आते हैं, वो एक हम क्या तो वेजिटेबल को उसको खा लेते हैं, फ्रूट को खाते हैं. फॉर टेक सिंपल एग्जांपल अपना मूंग है, मूंग की जो शेंगा रहते हैं, जैसे अपना जो सोयाबीन है, जैसे अपना जो चने की जो भाजी रहती है, उसको क्या कहना है हमें स्प्राउट कहना है. नॉट सी, स्प्राउट्स आर. नेक्स्ट वन इज अ स्प्राउट. नेक्स्ट वन इज अ स्प्राउट. Sprout.
So first, write the meaning of a sprout. Young shoots, especially young shoots, especially of mung, soybeans, eaten as a vegetable or food. Vegetable or nausea. So young जो shoot रहता है उनका nausea दिया है. Two systems in the plants nausea. So in the stem of a plant, there are two systems in a plant. One is the shoot system and next one is a root system. ध्यान में रखिए. ये अपना क्या है? Root system. ये हुआ अपना root system, and this one is a shoot system included like the branches, fruits, flowers. उसमें सब क्या होते हैं? parts आ जाते हैं. This one is a shoot system of plants. तो कुछ प्लांट्स की जो क्या बोलते हो शूट सिस्टम है, हम उसको क्या बोलते हो फूड और वेजिटेबल को खा लेते हैं. जिस तरह हम चने की भाजी जो तोड़ते हैं, मूंग की भाजी हो, अपनी सोयाबीन की हो, तो उसको हमें क्या कहना हो तो स्प्रॉट कहना. क्या कहना है? स्प्रॉट. नाउसी. वैसे हम स्पॉट्स के बारे में बस डिस्कशन कर लेते हैं. और से स्पॉट्स आर न्यूट्रियस. स्पॉट्स क्या रहेंगे? वो तो न्यूट्रियस रहेंगे. फर्स्ट वन इज स्पॉट्स आर न्यूट्रियस. स्पॉट्स आर न्यूट्रियस. नाउ सी, जितने हमारे स्पॉट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? थोड़ा न्यूट्रियस रहेंगे. स्पॉट्स सीड्स आर पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स. वो किससे पैक हुए से होते हैं? तो उनमें क्या होता है? बहुत सारा हमें क्या है? न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है. बाय स्पॉटिंग प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज एंड एट द सेम टाइम टॉक्सिक आर रिड्यूस. कुछ समूह क्या होता है? टॉक्सिक भी क्या होता है? प्रोड्यूस करते हैं. स्पॉट्स इंक्रीज द डाइजेस्टिबिलिटी. ध्यान में रखिए, स्पॉट्स इंक्रीज द डाइजेस्टिबिलिटी. वो क्या करते हैं? तो डाइजेस्टिबिलिटी को क्या है? इंक्रीज कर देते हैं. नेक्स्ट वन, फ्रेश. Sparks grown at home and served at the dinner table are the fresh food you will ever eat. Now see, स्पॉट्स क्या होते? फ्रेश रहते हैं. उसको हम अपने क्या खेती में हो, अपने शहर में जहाँ कभी जगह होती है तो वहाँ पर भी उसको क्या कर सकते हो? तो ग्रो कर सकते हैं. दे हैव नॉट लॉस्ट विटामिन्स लाइक सॉफ्ट रॉट वेजिटेबल्स. दे आर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी. नाउ सी, स्पॉट्स एवरी टाइम क्या बोलते हो? क्या रहते हैं? फ्रेश रहते हैं. सो स्पॉट्स आर फ्रेश. स्पॉट्स आर फ्रेश. वो हमेशा क्या बोलते हो? हरे भरे और ताजे रहते हैं. चीप. स्पॉट इंग्लिश रेडिक्लोजिंग चीप. वो क्या बोलते? बहुत ही क्या है? सस्ते रहते. उतने क्या बोलते? ज्यादा नहीं थे. स्पॉट्स आर चीप. स्पॉट्स आर चीप. तो थोड़े से क्या रहेंगे? तो बहुत ही क्या है? सस्ते रहते. इजी टू प्रिपेयर एंड टेस्टी. उनको प्रिपेयर करना में ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है. वो इजीली प्रिपेयर होते हैं और वो इजीली क्या बोलते हो? टेस्ट, बहुत ही टेस्ट लगते हैं. सो आफ्टर बॉइलिंग एंड एडिंग सम स्पाइसेस दे आर टेस्टी स्नैक्स टू ईट. नाउ सी, सो आफ्टर बॉइलिंग एंड एडिंग सम स्पाइसेस, स्पॉट्स आर वेरी टेस्टी स्नैक्स टू ईट. वो बहुत ही टेस्टी क्या हमें लगते. जब उसको बॉयल करेंगे कुछ ज़्यादा उसमें अगर कुछ मसाला डालकर उसको खाएंगे तो उसको क्या होता है? वो बहुत ही क्या है? टेस्टी लगते हैं. नाउ सी, easy to prepare and tasty. Spots are easy to prepare, and tasty. तो क्या रहेंगे? इसीलिए प्रिपेयर होंगे और क्या बहुत ही टेस्टी लगते हैं. Many spices and condiments are seeds of plant. This includes the धनिया जिसको हम बोलते हैं कोरिएंडर, कोथिंबीर हो, जीरा हो,
पेपर एंड द मस्टर्ड। ये बहुत ही क्या होता है टेस्टी रहते हैं। और से nuts are the seeds of the stone fruits. Now see, nuts are the seeds of the stone fruits. Nuts are used as snacks or as a flavoring agents in a cooking certain dishes. ध्यान में रखिए, नट्स क्या बोलते हो, एक उसको हम स्नैक्स बोलकर उसको यूज कर सकते हैं एज ए फ्लोरिंग एजेंट्स इन द कुकिंग सर्टन डिशेस। तो कुछ डिशेस में उसको क्या बोलते हो मिक्स किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन द वेजिटेरियन डिशेस एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मीट। जब अपने मांस जो लोग खाते हैं वो अगर उनको ये नहीं खाना है तो वो क्या बोलते हो नट्स की आदत डाल सकते हैं। द कॉमनली यूज्ड नट्स इंक्लूड आलमंड, वॉलनट, कैश्यू नट, कोकोनट एंड द पीनट। जो अपना काजू, बादाम, जो अपना ये नारियल है, खोबर जिसको हम बोलते हैं, कोकोनट है, वो भी क्या होते क्या है नट्स में आ जाते हैं। नाउ सी नेक्स्ट वन इज द कुकिंग ऑयल्स। कुकिंग ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। जो हमारे कुकिंग ऑयल है वो क्या बोलते हो कुछ प्लांट्स की सीड्स की उसको क्या बोलते हो एक्सट्रैक्शन किया जाता है। दिस इंक्लूड्स मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, रेपीसीड, लिनसीड एंड द सिसम। हम सभी को मालूम है हम जो खाने का तेल है मोस्टली कहाँ से आता है, अपना सनफ्लावर है, सोयाबीन है, और नेक्स्ट हमें क्या बोलते हो ग्राउंडनट जिसको शेंगा हम बोलते हैं। तो इनके माध्यम से उसको क्या बोलते हो एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अंडरस्टैंड? सीड्स ऑफ कॉफी एंड कोका प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक बेवरेजेस। ड्रिंक्स अदर देन द वाटर इज कॉल्ड एज द बेवरेजेस। अंडरस्टैंड? जो वाटर को छोड़कर जो अदर जितनी भी लिक्विड्स है जो हम पी लेते हैं उसको हमें क्या कहना है, वो तो बेवरेजेस कहना है। अंडरस्टैंड? नाउ सी एंड नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेवरेजेस? So drinks other than water is called as the beverages. Now see what is the meaning of beverages. Define beverages. Now see drinks other than water या liquid, drinks other than liquid or water। इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं। कॉफी है एग्जाम्पल अपना क्या रहेगा, कॉफी है, कोको कोला, पेप्सी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं होता है एक लिसन। तो these are the examples of beverages. Now next one see food from the animals. The animals से हमें कुछ फूड्स मिलते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना। So we know that animals are used as food either directly or indirectly by the products they produce, meat, milk। हम सभी को मालूम है एनिमल्स के माध्यम से क्या मिलता है, तो उसका जो मांस है और दूध। Now see food from animals। Food from animals। Animals can be used as a food। ध्यान में रखो एनिमल्स क्या बोलते हो उनको क्या है फूड की तरह यूज किया जाता है। एनिमल्स कैन बी यूज्ड एज ए फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस, मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स एंड द हनी। तो एनिमल्स कुछ से प्रोडक्ट्स को रेडी करते हैं, तो दूध है, मांस है, हनी है और वो एग्स। नाउ सी फर्स्ट वन इज अ मीट। अब हम उसका फूड फ्रॉम एनिमल्स में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट वन जो मीट जिसको मांस बोलते हैं, मांस। Now see, meat is an example of a direct product taken from animal which comes from either muscle system or from organs. The commonly eaten meats are mutton. Now see, so meat is the example of a direct products taken from the animals which come from the muscles or the organ system of animals। जो मीट है, जो मांस है, वो एनिमल्स की क्या बोलते हो डायरेक्टली हम उसको हम ले सकते हैं, उनका जो मसल्स है, उनका जो बॉडी के ऑर्गन्स है। The commonly eaten meats are mutton, goats or sheep's meat। जैसे लोग मटन खाते किसका रहता है मोस्टली बोलो तो गोट और क्या है वो sheep का रहता है। Lamb meats of a sheep less than 1 year old। Now see
पोल्ट्री बर्ड्स विच आर रेज्ड फॉर देयर मीट एंड एग्स, जो हमारे पोल्ट्री की जो कुमड़ियाँ रहती है उसके लिए पाला जाता है, वो तो उनका चिकन ये करने के लिए और एग के प्रोडक्ट के लिए उनको क्या है यूज किया जाता है। फ्लेश ऑफ पिग, beef flesh of full grown cattle, nasi, fish and offal, general name for various organs and the glands of the animals, nasi। तो एक अलग अलग प्रकार के क्या हो तो उसमें जो आ जाते हैं अलग अलग प्रकार से, अपना पिग है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं बीफ है, फिश है, ओफल है, उनको क्या बोलते हो एक मीट की तरह क्या है यूज किया जाता है। सो व्हाट इज द मेन रोल ऑफ मीट? मीट का हमारी बॉडी में क्या मेन फंक्शन है? Meat provides good quality proteins, vitamins, minerals, and fat necessary for the good health and the growth. Now, so meat provides good quality proteins, vitamins, minerals, and fat necessary for the good health and the growth. हमारे अच्छी हेल्थ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए मीट क्या हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और क्या है फैट्स को क्या है वो ऐड करता है। नाउ सी मीट। सो फर्स्ट पॉइंट, meat is an example of a direct product taken from an animal which comes from either muscle system or from organs meat an example of a direct product taken from the animals, and इसको क्या हो तो डायरेक्टली एनिमल से इसको क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ सी, and which comes from either muscle system or the from organs. The commonly eaten meats are meats are mutton. Now see, हमें कहाँ से मिलता है तो मटन? गोट्स और शिप्स मीट। जो मटन मोस्टली कैसे रहता है तो गोट्स और शिप से रहता है। नेक्स्ट नाउ सी, पोल्ट्री जो हमारे नेक्स्ट जो ये रहेंगे उसमें क्या हो तो पोल्ट्री में जो रहेगा बर्ड्स विच आर raised for their meat and eggs। तो पोल्ट्री में जो अपने इसको प्रोडक्ट किया जाता है उसको संभाला जाता है किस लिए तो एग देने के लिए और ये करने के लिए। और से सो द मेन फंक्शन ऑफ मीट, मीट का क्या मेन फंक्शन है ये हमें लिखना है। और सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मीट? सो मीट प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट नेसेसरी फॉर अ गुड हेल्थ एंड द ग्रोथ। एक अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी हेल्थ रहने के लिए मीट के माध्यम से हमें क्या हो तो प्रोटीन, विटामिन और क्या है मिनरल्स और फैट हमें क्या है मिल जाए। नाउ सी द नेक्स्ट वन इज एग्स। चिकन एग्स फॉर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा एग है बहुत सारी दुनिया अपनी जो कंट्री है बहुत सारे कंट्री में क्या होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट उसको कहा जाता है। इन सम एरियाज डक एग्स आर वाइडली यूज्ड। कुछ एरियाज में क्या होता है डक के जो एग रहते हैं उसको क्या है यूज किया जाता है। चिकन एग्स प्रोवाइड एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड द विटामिन्स। हमारे जो कुमड़े की जो अंडे रहते हैं उसके माध्यम से हमें क्या होता है एक अच्छा क्या है प्रोटीन और क्या है